So last session mein we have completed with the most important part from where the MCQs are normally asked through the years, that is MOT, molecular orbital theory. That section is really very important and many of the questions from this chapter come from that particular topic. ठीक है, बाकी टॉपिक्स मोर और लेस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से कोरिलेटेड है ही. So most of the stuff we have covered in the previous block elements. Many of the concepts in the organic chemistry are also a part of chemical bonding of this chapter. Okay, so the next section covers Fajan's rule. This was an important rule to determine the covalent character or the ionic character. So let's start with the MCQs. First one, according to Fajan's rule, covalent character is favored by. So three of the conditions are to be satisfied. For ionic character, it needs to have a large cation, small anion, and a low positive charge. And covalent character के लिए उल्टा, it needs to have a small cation, large anion, and a high positive charge. ठीक है, तो small cation, large anion combination would have the highest or the most covalent character for a given compound. So now applying that principle to the next question, which one of the following combination of ion will have the highest polarization? Now the word polarization is related to polarizing power, and polarizing power in turn is nothing but same as covalent character. अगर आपको याद रहेगा तो covalent character के questions will be similar to the questions on polarizing power, मतलब the order for both of them will be same, and this is also related to the lattice enthalpy or the lattice energy. तो अगर क्वेश्चन में कोवेलेंट कैरेक्टर आया, पोलराइजिंग पावर आया, लैटिस एनर्जी आया, they are to be solved on the similar lines. ठीक है, so now looking at the combination, highest polarization किसका होगा? हाईएस्ट पोलराइजेशन किसका होगा, यानी हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी फॉर. Now first observation, in all the options the anion is fixed, तो anion का कंपैरिजन करना ही नहीं है. कटाइन की अगर बात करें तो स्मॉल कटाइन होना चाहिए. Now if we talk about lead 2 plus versus lead 4 plus, the lead 4 plus is a smaller cation, तो ये ऑप्शन तो रूल्ड आउट है. फेरस और फेरिक में a cation with a higher positive charge is smaller, that is why ferrous भी ruled out है. अब बचा अपना फेरिक आयन और lead with a 4 plus charge. Now one sec. Now when we talk about the polarizing power, the force of attraction is given by the Coulomb's law or Coulomb's law, which is given as proportional to the product of the charges and inversely proportional to square of the distance between the ions. तो यहाँ पर Q1 Q2 का एक फैक्टर जो है that also becomes very important while determining the covalent character. So in case of second option, we have +4 and -1. Magnitude of the product will be 4, and यहाँ पर +3 and -1 है, तो इसका magnitude 3 times होगा. मतलब चार्ज यहाँ पर एक डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है while comparing the polarizing power or the covalent character. So always remember, whenever there is a size versus the charge differing, then charge is to be given dominance as compared to the size. Remember it well. Polarizing power में अगर charge और sizes दोनों में फर्क है तो charge को पहले preference देना है. ठीक है, और इसीलिए the answer is lead 4 plus with a bromide combination will have the highest covalent character. Next should be simple. Correct order of covalent character of alkaline earth metal chloride is. So now alkaline earth metal के chlorides मतलब down the group trend हो रहा है. So in general covalent character top to bottom goes on.
डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा पोलराइज करने का पावर छोटे कटायन में होता है, दैट इज व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल में द बेरिलियम विल हैव द हाईएस्ट polarizing power and in turn the highest covalent character, and down the group it goes on decreasing, that is why the answer is option 3. And fourth question में which of the following is in order of increasing covalent character? अब इस ऑप्शन में if you see it's the trend which is to be compared left to right. अब लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो अलोंग अ पीरियड द कटाइन का चार्ज इंक्रीजेस, कटाइन का जो चार्ज है वो बढ़ते जाता है, दैट इज एल का +1, बोरॉन का +3, बेरिलियम का +2 एंड कार्बन का +4। अनाइन सेम है, ठीक है। और एक चीज लेफ्ट टू राइट साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब लिथियम जो है वो सबसे बड़ा कटाइन होगा, कार्बन 4+ सबसे छोटा कटाइन होगा। So combination of small cation and high positive charge will give CCl4 the highest covalent character, and that's why the answer will be option 3. मतलब ओवरऑल इस 4 क्वेश्चन से कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे कंपेयर करना है, अलग कॉम्बिनेशन आया तो कैसे कंपैरिजन होना चाहिए, टॉप टू बॉटम का ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड, चारों चीज मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए ये चीज हमेशा याद रखना, इफ आई हैव MgCl2 वर्सेस MgO, MgCl2 versus MgO, here the charges are +2 and -1, तो प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड 2 होगा, और यहाँ पर +2 और -2 है, मतलब प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होने के हिसाब से MgO का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस टाइप के कंपैरिजन में जस्ट एक ही चीज मैंने बोला है, चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर कंसिडर करो। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कटायन हैज सूडो inert gas configuration? Now pseudo inert gas is nothing but inert gas along with the completely filled D10 या F14 configuration. अगर D10 या F14 configuration किसी inert gas के साथ आता है तो उसको pseudo inert gas बोलते हैं। तो इससे लॉजिकली यही कॉन्सेप्ट है कि a cation of the D block or the cation of the F block will always have a pseudo inert gas configuration. So undoubtedly option में से answer 3 is the answer, and why? Because copper in CuCl has a +1 oxidation state, और +1 के साथ कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इट विल हैव आर्गन एंड 3d10. So just argon is called inert gas configuration. Argon with D10 या F14 would be called pseudo inert gas configuration. Hence the answer is 3. Next, which one of the following pairs of elements is most likely to form an ionic compound? Now if you are given two elements A and B, वो ionic bond बनाएगा कि covalent bond बनाएगा, that is understood or can be determined by the difference in electronegativity. If two elements have a large difference in electronegativity, definitely the type of the bond is ionic and the compound would be ionic in nature. ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन सिंपल है, हिंट समझते जाओ, हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So now looking at the options, the answer is clearly option 2, because it is a combination of the metal and non-metal which differ in their electronegativities by a large value. बाकी सारे अगर देखोगे तो बोरॉन एंड क्लोरीन BCl3 बनाता है जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन के ऑक्साइड बनाता है, वन ऑफ देम इज Cl2O विच इज अगेन अ कोवेलेंट बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत कम है. अल्यूमिनियम एंड आयोडीन will form a covalent compound but it will also have some ionic character in it, but सबसे ज्यादा ionic compound KO2 बनाएगा, पोटेशियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन. And next, among sodium, magnesium and aluminium, the correct order of ease of formation of ionic compound is sodium, magnesium and aluminium left to right covalent character बढ़ता है, ionic character घटता है, तो sodium undoubtedly will form the highest ionic character वाला compound, hence the answer is 2. Next,
The topic is polarity of bond, dipole moment, hydrolysis, and back bonding. All of these topics we have discussed in the previous chapters, and organic और inorganic में काफी हद तक ये सब कुछ cover हो चुका है. So it is just a revision, should be a revision for you. Which hydrogen is most polar? Now, a compound is most polar if the elements have a large difference in electronegativity. तो again यहाँ पर hint है high electronegativity का difference. So, which should be the correct answer? High electronegativity difference will be for H and F अच्छा because hydrogen का electronegativity 2.1 है, fluorine का 4.0. डिफरेंस 1.9 का है, तो ये सबसे ज्यादा पोलराइज्ड होगा. H and I में the difference is there but it is not very high. LiH और cesium का हाइड्राइड ये मोस्टली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट नहीं. Which has maximum dipole moment. Now, the concept of dipole moment is already discussed. एक बार फिर से, dipole moment mu is given as the product of charge and distance. The unit of this is coulomb meter, and the smaller unit is nothing but device indicated by a capital D. It's a vector quantity which is indicated by a direction. Let's say A and B is a covalent compound, and here B is more electronegative negative as compared to A. So B will have a large electron density as compared to A. Hence, B will acquire a partial negative charge, A will acquire a partial positive charge, and the dipole will be indicated from A to B. This is how we indicate. So dipole ka magnitude is given as charge into distance, and it's a vector quantity indicated by a direction. ठीक है. नाउ अगर दो वेक्टर्स है आपके पास mu1 और mu2, तो उसका जो नेट या रिजल्टेंट वेक्टर है, that is understood by the parallelogram law of vectors. I'm sure you might be knowing that. So mu resultant would be given as mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 into cos of the angle between the vectors. अगर यहाँ पर cos का एंगल है, इसका मतलब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट कब होगा? when the theta or the angle between the vectors is lower. ठीक है. So maximum dipole moment will be given for the theta equal to 0 and minimum will be given for theta equal to 180 degree. तो यहाँ पर क्लियरली आप एंगल्स देख सकते हो. दिस इज एन acute angle, 90 degree obtuse and 180 degree. So obviously the answer is option 1. Of the following molecules, the one which has a permanent dipole moment. Now, permanent dipole moment का मतलब क्या होता है? If I talk about the example of BF3, we know that boron is sp2 hybridized and it is a planar molecule. If I talk about BF bond, we know that BF is a polar covalent bond due to difference in electronegativity, and the dipole will be indicated towards a more electronegative fluorine. तो अगर BF bond की बात करूं तो वो polar है, लेकिन because of the planarity of the molecule, these two vectors will give you a resultant vector in this direction, and now these two vectors would be equal and opposite, due to which it will cancel. The molecule as a whole doesn't have any dipole moment. तो such type of molecules जिसका bond polar होता है, bond में dipole moment होता है, लेकिन as a whole जिसका dipole moment 0 होगा, we say that this type of molecules have a mu equal to 0 and they do not have a permanent dipole moment. तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? अगर मैं यहां पर जनरलाइज करूं तो इफ एनी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम हैज सेम बॉन्डेड एटम्स, BF3 के बॉन्डेड एटम फ्लोरीन है, वो तीनों सेम ही है, एंड डजंट हैव अ लोन पेयर, सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है,
तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज हैव म्यू इक्वल टू 0। अब कोई भी एग्जांपल उठा लो, अगर सेंट्रल एटम का बॉन्डेड एटम सेम है और उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो फिर म्यू हमेशा उसका 0 होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे बोरॉन के लिए BF3, कार्बन के लिए CCl4, मीथेन, फॉस्फोरस का PCl5, सल्फर का SF6, आयोडीन में IF7। इन सब के सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, इनका म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड वी से दीज मॉलिक्यूल्स हैव doesn't have a permanent dipole moment. ठीक है, so now looking at the options, can you tell me the answer? किसका permanent dipole moment है? 3. Option 3, because यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास there is a lone pair, और जब लोन पेयर होगा तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, मतलब दिस मॉलिक्यूल विल हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड इट विल बी पोलर इन नेचर। समझा? CCl4 में CCl बॉन्ड पोलर है, लेकिन CCl4 एज अ मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, इसलिए हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं इन मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो फंडा हम कर चुके हैं ऑर्गेनिक में, इट इज नॉट समथिंग विच इज न्यू। आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अ वेरी गुड क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है नीट में भी। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स आर सच दैट BF3, NF3 and NH3, is there any option or is there any molecule which has a zero dipole moment among the three? BF3. BF3 तो उसका सबसे लीस्ट होगा, और वैसे देखने जाए तो एक ही ऑप्शन में वो सबसे लीस्ट है, तो आंसर तो 3 है। अब क्वेश्चन आता है अमोनिया वर्सेस NF3 में अमोनिया ज्यादा पोलर क्यों है? थियोरेटिकली NF3 ज्यादा पोलर होना चाहिए बिकॉज F इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ चुका है कि अमोनिया वर्सेस NF3 में ज्यादा पोलर कौन सा है। तो दोनों का ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगा और शेप पिरामिडल होगा, 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पर आता है? डाइपोल में। तो इफ आई टॉक अबाउट NH बॉन्ड, इसमें नाइट्रोजन इज मोर पोलर, द डाइपोल विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, and whenever there is a lone pair, the dipole का direction as per convention is always away from the central atom, मतलब नाइट्रोजन से हमेशा अवे होगा। बट NF3 के केस में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल विल बी इंडिकेटेड फ्लोरीन की तरफ एंड नाइट्रोजन के लिए अवे होगा। Now, if you know the concept of vectors, you can see that this 3 dipoles and the lone pair वाला dipole are in the same direction, तो इसका जो रिजल्टेंट है mu1 let's say वो काफी ज्यादा होगा। लेकिन NF3 में 3 डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू लोन पेयर वाला डाइपोल, यहाँ थोड़ा सा कैंसलेशन होगा, इसीलिए mu2 थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन फ्लोराइड, and that's why ammonia is more polar as compared to NF3, less polar. Very important comparison. Next, the dipole moment of HCl is 1.03 dBs. If HCl bond distance is 1.26 angstrom, what is the percentage of ionic character in the HCl bond? Now, percentage of ionic character can be calculated by 2 formulas. एक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। मान लो if there are 2 elements A and B whose electronegativities are given, then I'd given a formula to calculate percentage of ionic character. Can someone recollect that formula?
It was 16 times the difference in electronegativity plus 3.5 the difference का square. This is first formula to calculate percentage ionic character. अब दूसरा फॉर्मूला जो है that could be calculated using dipole moment concept. अब उसके लिए just understand the question. The dipole moment is given and the bond distance is given. And we know that dipole moment is given as charge into distance. तो अगर डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस दिया है तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं एंड ये जो चार्ज है वो आपको आयोनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करके देगा. अब उसका फ्लो या फिर स्टेप्स क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम यूनिट्स कन्वर्जन व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड. 1 dBi in SI unit is equal to coulomb into meter. बट हम यहाँ पर कुलम मीटर ना यूज करके वी यूज द मोर कॉमन यूनिट ऑफ ESU into सेंटीमीटर. ESU is electrostatic unit, the unit of charge, and centimeter is the unit for distance. And 1 dBi is equal to 10 power minus 18 ESU centimeter. DBi is a smaller unit and it's equal to 10 power minus 18 ESU centimeter. तो अब यहाँ पर ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट जो डिवाइस में दिया है 1.03, if I multiply 10 power minus 18, I am getting in ESU centimeter equal to charge मुझे पता नहीं है into distance. Now distance is given in angstrom, so obviously आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस हो जाएगा 1.26 into 10 power minus 8 सेंटीमीटर. इससे क्या हो रहा है, आपको जो चार्ज है वो ESU यूनिट में मिल रहा है, जो कि नॉर्मली आपको पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट. सो कैलकुलेशन करो, Q विल बी 1.03 अपॉन 1.26 इंटू 10 पावर माइनस 10. ये आ जाएगा ESU में. तो 1.03 इज अप्रॉक्स 1 एंड नीचे वाला 1.25 है, और 1.25 को आप रेशियो में 5/4 लिख सकते हो. एंड जब ये कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का चार्ज. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. अब सेकेंड स्टेप में the charge ESU in ESU unit needs to be converted into coulombic charge. अब उसका रिलेशन क्या है, 1 coulomb is equal to 4.8 into 10 raised to minus 10 ESU. एक तो ये रिलेशन और दूसरा कूलम का रिलेशन, दोनों याद रखो. Now here I can calculate the fraction of electron का charge in coulombs, and that will be in coulombs, and that will be equal to जो ESU वाला चार्ज है 0.8 into 10 raised to minus 10, उसको डिवाइड कर लो 4.8 into 10 raised to minus 10 के साथ. ये निकल जाएगा, फ्रैक्शन आएगा 1/6, and this 1/6 is 0.1 and 47.17. और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो वही आपका आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज भी है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. ईशा, पे अटेंशन. तो स्टेप्स क्या है, डिवाइस को ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिया, एंड वी गॉट द चार्ज इन ESU. अगर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है जहां पर ESU में चार्ज फाइंड करना है तो दिस इज द अप्रोच. फिर ESU को कूलम में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमने कैलकुलेट किया, और उसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो दैट विल बी द आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज. तो दोनों फॉर्मूलाज आपके सामने हैं. आयोनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करना है फजान्स रूल से, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है आइदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू या फिर डाइपोल मोमेंट का अप्रोच. So 3 types of questions can come under ionic character topic.
ईशा पलक मेहता, पे अटेंशन. Next, which of the following cannot be completely hydrolyzed in cold water at room temperature? Now, if you remember, non-metal का chlorides अगर पानी में डालते हैं तो what does it form? एक ट्रिक दिया था. BCl3 on dissolution in water gives what? Orthoboric acid. Orthoboric acid. And statement क्या था? It will give you the acid in the Same oxidation state. same oxidation state. Superb. Non-metal का halides on dissolution in water gives the oxy acid in the same oxidation state. हमने ग्रुप एलिमेंट्स में ये स्टेटमेंट बार बार डिस्कस किया है. ठीक है, तो बोरॉन तो ऑर्थोबोरिक एसिड देता है इन द सेम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. PCl3 गिव्स PCl3 plus H2O gives H3PO3. H3PO3 in the same +3 oxidation state, and PCl5 would give H3PO4 in +5 oxidation state. BBr3 का भी सेम फंडा है. तो हाइड्रोलाइज कौन नहीं होता है? आंसर सी है, CCl4 है. कैन यू टेल मी द रीजन? Non-polar. नहीं, even BCl3 is non-polar. That is not the reason. और ये ग्रुप 14 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा था. CCl4 doesn't undergo hydrolysis, but उसी फैमिली का SiCl4 हाइड्रोलाइज होता है. We have done this. The Cl is very big and bulky. Vacant orbitals. हाँ, किसमें है और किसमें नहीं है? Si has. Si Carbon has. does. Now, carbon belonging to the second period doesn't have the vacant d orbitals, due to which जब ये हाइड्रोलाइज करेगा ना तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को नहीं दे सकता, क्योंकि कार्बन अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता. ठीक है, बट सिलिकॉन में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर अपना लोन पेयर डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है. इसीलिए CCl4 में देयर इज नो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, बट SiCl4 में होता है, एंड इट गिव्स यू द acid named as silicic acid with the formula H4SiO4. H4SiO4. SiOH 4 टाइम्स ओपन करोगे तो ये मिलेगा सिलिसिक एसिड. ठीक है, अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि BCl3 का बोरॉन भी तो सेकेंड पीरियड में है, तो उसका हाइड्रोलिसिस क्यों होता है? कैन यू टेल मी द रीजन नाउ? Lewis acid. It's a Lewis acid. Superb. Because boron, the central atom, is electron deficient. बट कार्बन अगर याद रहेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं. ना तो वो गरीब है ना अमीर है, जितना चाहिए उतना ही है. मतलब इट हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट और वो एक्सपांड भी नहीं कर सकता. लेकिन बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो ऑक्सीजन के थ्रू लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये ल्यूविस एसिड है. इसीलिए इसका हाइड्रोलिसिस होता है, एंड इट गिव्स यू द ऑर्थोबोरिक एसिड H3PO3. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. सो ग्रुप नंबर 14 का कार्बन का हैलाइड do not undergo hydrolysis, but उसके पहले और उसके बाद के ग्रुप्स के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स भी हाइड्रोलाइज होते हैं. ठीक है, तो याद रहेगा. तो बी ब्लॉक में हमारे पास 3 टाइप के स्पीशीज होते हैं: इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप 14 को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप 13 और इलेक्ट्रॉन रिच 15, 16 और 17 को बोलते हैं.
और उनमें हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, so that's the concept. Hence the odd man out in the options is clearly CCl4 with the reason understood. Next is a very very important question, नीट में आ चुका है. नजर यहाँ पे, which is the true statement about SiH3 thrice N. सबसे पहले इस बंदे का नाम है ट्राइसिलाइल अमाइन. ट्राइसिलाइल अमाइन. ये अजीब नाम नहीं है एक्चुअली. सिलिकॉन की फैमिली में अगर मैं कार्बन को रखता हूं तो आपको एक वेल नोन कंपाउंड दिखने मिलेगा. इट्स trimethylamine, right? A tertiary amine with 3 methyl on it, it's called trimethylamine. अब मिथाइल की जगह अगर SiH3 ग्रुप है उसको सिलाइल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्राइसिलाइल अमाइन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो हम ट्राइमिथाइल अमाइन की बात करते हैं. ठीक है, टेल मी व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिस अमाइन. हाइब्रिडाइजेशन. Three BPs and one LP will give you hybridization as sp3. एंड sp3 के साथ यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब इसका जो शेप है दैट विल बी पिरामिडल. करेक्ट. तो अगर कार्बन की जगह पर SiH3 वाला ग्रुप भी डाल दो, ठीक है, तो इसका भी पिरामिडल ज्योमेट्री आना चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है. There is a different hybridization observed in this compound. Why? Understand. Carbon belonging to the second period doesn't have any d orbital vacant present. But silicon, on the other hand, from the same group has vacant d orbital. So now nitrogen के पास lone pair है, silicon का d orbital vacant है, तो क्या होगा इनके बीच में? क्या होगा? The central atom will give away its lone pair to the bonded atom. It will form a pi bond. And this pi bond is formed between the p orbital of nitrogen and the d orbital of silicon. That is why this bonding would be p pi d pi bonding, या इसको back bonding बोलो तो भी गलत नहीं होगा. p pi d pi back bonding होता है. ठीक है, तो फर्क क्या है? इन केस ऑफ ट्राइमिथाइलामाइन द नाइट्रोजन इज sp3 with a pyramidal shape, and in case of tricylyl amine now the nitrogen becomes sp2, because अब ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से now there will be only 3 BPs. That is why it will be sp3 with a planar geometry. समझा? Yes, दूसरी sir. बात, in case of trimethylamine the lone pair on the nitrogen is available, because of which it will behave as a stronger Lewis base, क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल है. लेकिन सेकंड केस में लोन पेयर डोनेट हो चुका है बैक बॉन्डिंग की वजह से. इसकी वजह से दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी वीकर बेस एज कंपेयर्ड विद द ट्राइमिथाइलामाइन. ठीक है, इसके केस में एन और सी का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एनसी बॉन्ड ऑर्डर. इट्स 1. But in the second case, the N and Si ka bond order is 1 plus 1 pi divided into 3. That's 4 by 3 or 1.33.
बॉन्ड ऑर्डर इस केस में 1 था, इस केस में 1.33 हो गया, तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसका बॉन्ड लेंथ सॉरी इसका बॉन्ड लेंथ हायर होगा और इसका बॉन्ड लेंथ लोअर हो जाएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है. तो दिस इज द एंटायर डेटा विच यू नीड टू नो अबाउट ट्राइसिलाइल अमाइन. एक बार फिर से, ट्राइसिलाइल अमाइन में नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जिसके पास लोन पेयर है donates the lone pair into the vacant d orbital of silicon, giving you the p pi d pi back bonding, due to which the basicity decreases, the bond order increases, and the geometry becomes planar. Hybridization changes from sp3 to sp2. ठीक है. Now let's see the options. ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो ट्राइसिलाइलामाइन इज इट ट्राइगोनल प्लेनार? यस ऑफ कोर्स, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. बाकी सारे गलत होने चाहिए. लेट्स कंफर्म. इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं, ट्राइमिथाइलामाइन पिरामिडल होता है, बट ये बैक बॉन्डिंग से प्लेनार हो जाता है. इट्स अ स्ट्रॉन्गर ल्यूविस बेस देन द ट्राइमिथाइलामाइन नहीं, इट्स अ वीकर ल्यूविस बेस. It has a total of 9 sigma bonds. Let's count. SI के साथ 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बनाएंगे, यहाँ पर और 3, यहाँ पर और 3, और ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं. मतलब 3, 6, 9 और 3 12 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, 12 सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड होगा. तो ये भी गलत स्टेटमेंट है. Hence the correct answer is option 1. And here you can observe the back bonding actually superimpose हो गया है. नाइट्रोजन का लोन पेयर इज गेटिंग डोनेटेड टू द सिलिकॉन का वेकेंट डी ऑर्बिटल. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो डायग्रामेटिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है. कंक्लूजन ये याद रखो दैट ट्राइमिथाइलामाइन ज्यादा बेसिक पिरामिडल है और ट्राइसिलाइल अमाइन लेस बेसिक और प्लेनार है. अब इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन. Which of the following statement is false for trisilyl amine? False पूछा है. Let's see the options. 3 sp2 orbitals are used for sigma bonding, giving a plain triangular structure. 3 sp2 orbitals are used for sigma bonding. Correct or incorrect? It's a true statement. The lone pair of electrons occupy a p orbital at right angles to the plane triangle, and this overlaps with empty p orbital on each of the 3 silicon atoms, resulting in pi bonding. Is this true? स्टेटमेंट बड़ा है बट स्टेटमेंट में कुछ है नहीं. ये बोला है कि लोन पेयर जो है वो p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है और जो डोनेशन है वो empty p ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन में हो रहा है. इज दिस करेक्ट? Sorry, I asked you all. It's empty p orbital नहीं, d orbital of silicon which is involved. So already concept बता चुका हूँ. I'm expecting the answers, but it's okay. So ये false statement है, यही आपका आंसर है. बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए. The NSI bond length is shorter than the expected NSI bond length. तो वहां पर वो बता दिया था मैंने कि बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होने की वजह से जो NSI बॉन्ड है वो शॉर्टर हो जाता है. तो ये भी करेक्ट है. And it's a weaker Lewis base than trimethylamine. ये भी करेक्ट है. So all the points I have described in the previous part. आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Which of the following does not have intermolecular edge bonding? Now ऑप्शन देखते ही समझ में आना चाहिए. The answer is option 2 because orthonitrophenol famously has intramolecular edge bonding. अब कौन से कॉन्टेक्स्ट में हमने ये देखा था? During the nitration of phenol, there were two cases: dilute versus concentrated. डाइल्यूट दो प्रोडक्ट्स देता है, ऑर्थो एंड पैरा, जिसमें से एक्सपेक्टेड पैरा मेजर होना चाहिए, लेकिन वी हैड ऑब्जर्व्ड दैट ऑर्थो वाज द मेजर प्रोडक्ट एंड द रीजन वाज इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, जिसकी वजह से फर्स्ट पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड द मॉलिक्यूल बिकम्स मोर वोलेटाइल, जिसकी वजह से अगर वार्म किया जाए ना तो बिकॉज ऑफ हायर वोलेटिलिटी orthonitrophenol will be separated first and in a greater yield.
and the ortho and para nitrophenol were separated by a process called steam distillation. Okay, so whatever MCQs context we have already discussed in the previous chapters, just go back to that chapter, वो concept को वापस देख लो and come back. It will be a thorough revision of the previous very important concepts which we have already discussed in the organic or inorganic chapters. जहां जहां आपको लगता है कि ये रेफरेंस है, ये हमने कहीं पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर में जाके उस टॉपिक को वापस देख लो ताकि आप उसको रिवाइज कर सको थ्रू दिस चैप्टर. Chemical bonding is a combination of many of the concepts of organic and inorganic chapters. So make sure that वो सारे concepts आप जाके वापस revise करते जाओ. Next, which compound have lowest boiling point? So boiling point in general is dependent on intermolecular forces of attraction. तो lowest के लिए weakest intermolecular forces होने चाहिए. Can you guess the answer? Ammonia, water, and HF all have hydrogen bonds. H2S will have a weak van der Waals force of attraction. So lowest boiling point, weakest force के लिए होगा answer third. Which of the following compound have maximum number of H bonds per mole? Hydrofluoric acid, phosphine, water या oxygen difluoride. अब इसके रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं कि वाटर में जो केज लाइक स्ट्रक्चर आता है उस केस में there are 4 water molecules surrounding one H2O molecule. How? This H, because of the delta plus, will be attracting oxygen of one water molecule. This H would attract the oxygen of second water molecule. ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज है एंड 2 लोन पेयर है, उसकी वजह से this oxygen will attract the H of third and H of fourth water molecule. और ऐसे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता है which gives you a cage like structure. So one water molecule के around there are 4 water molecules, hence there are 4 H bonds formed per mole. और वो हाईएस्ट भी रहता है वाटर के केस में, that is why the answer is 3. Which of the following has minimum melting point? Now, if I have a covalent compound versus an ionic compound, which is going to have a higher melting point? Covalent versus ionic में, which will have a higher melting point? Answer is ionic compound. तो अगर कोई क्वेश्चन मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट का है, इसका मतलब आपको लोवेस्ट आयोनिक कैरेक्टर सोचना है या फिर हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर सोचना है. ठीक है ना. मेटल एंड नॉन मेटल जनरली फॉर्म्स द आयोनिक कंपाउंड. तो इसमें आयोनिक कंपाउंड के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, but they will have ionic character in it, due to which the melting point is going to be higher. बट अगर HCl और HF देखोगे तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, मतलब पहले ये कोवेलेंट है, उसके साथ उसमें आयोनिक कैरेक्टर होता है. ठीक है. अब ऑब्वियसली अगर आयोनिक कंपाउंड्स है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होने वाले हैं. तो CSF और LiF को तो आप रूल आउट कर सकते हो. Among HCl and HF, HF will have the H bonds and HCl will have the van der Waals attraction. ठीक है. तो ये कोवेलेंट कंपाउंड में वीकर फोर्सेस होंगे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा. तो आंसर इज HCl. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है वो ऑब्जर्व करना है. और एक चीज, अगर मल्टीपल कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो लो पोलर जो होगा या लेस पोलर, that will have the minimum melting point. So every question has a particular thought process which needs to be applied correctly. Question melting point का है तो आपका thought process क्या होना चाहिए, क्या सोचना है आपको, that is the thing to be understood.
अदरवाइज बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आप कंपैरिजन कर सकते हो, बट एग्जैक्ट पैरामीटर आपको पता है तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज कम टू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। वंस अगेन इंटरमोलिकुलर मतलब वेंडर वॉल्स, डाइपोल डाइपोल एज बॉन्ड्स, इसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, कितने एज बॉन्ड्स बनते हैं, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनिक में भी कर चुके हैं। So, which of the following models best describes the bonding within a layer of the graphite structure? ग्रुप 14 में अलोट्रोपिक फॉर्म्स का कार्बन का अलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन्स, इसके बारे में सारे डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस शुड बी अ वेल नोन क्वेश्चन। Among the layer of graphite, carbon atoms are joined by Van der Waals. na. Within a layer, carbon atoms are joined to another carbon atoms by covalent bonds. layers के बीच में weak van der Waals होता है. Within a layer, covalent. Between the layers, van der Waals. Within a layer, it's covalent bonds between the non-metallic atoms, that is carbon atoms. तो ये non-metallic covalent bonding है. Question क्या है? Within a layer. अगर between the layers है तो definitely answer would have been van der Waals. Understood? Next. Which of the following is false? Van der Waals forces are responsible for formation of molecular crystals. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 4 टाइप के क्रिस्टल एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है. दे आर मेटेलिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स and molecular solids. Among the molecular solids, 3 subtypes were there, depending on the force of attraction between the molecules. And they were polar molecular solids, non-polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. ठीक है, तो molecular crystals के बीच में van der Waals forces exist करते हैं. ये completely correct नहीं है, this is partially correct. बिकॉज वेंडर वॉल्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ सकता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी आ सकता है. लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस टू डिसाइड वेदर दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और नॉट. ब्रांचिंग lowers the boiling point of isomeric organic compounds due to reduction in the van der Waals force of attraction. Now, organic compounds में if I have isomeric compounds, देन एक रूल मैं हमेशा देता हूं, BDB, ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट. फंडा क्या था कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होगा और उसके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर हो जाएगा एंड द बॉइलिंग पॉइंट वुड बी लेसर. So this is absolutely the correct statement. In graphite, van der Waals forces act between the carbon layers. Now this is correct or incorrect? Correct. करेक्ट है. बिटवीन द लेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब van der Waals करेक्ट है. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन स्टाइबीन. दिस शुड बी अ वेल नोन ऑर्डर. ग्रुप 15 में हाइड्राइड्स की अगर बात करें, अमोनिया, आर्सीन, फॉस्फीन, स्टाइबीन, बिस्मथ हाइड्राइड, which was having a highest boiling point. इसमें एक एक्सेप्शन था. You got to revise P block, huh? Among the hydrides of group 15, bismuth hydride was having the highest boiling point because इसके van der Waals dominate कर रहे थे as compared to the H bond of ammonia. तो अमोनिया यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे था. एंड देन कम्स आर्सीन और लास्ट में लोवेस्ट होता है फॉस्फीन का. बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था ये. और याद रहेगा तो हाइड्राइड्स को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, जहां पर मैंने एक न्यूमोनिक भी दिया था SBR, in which I had discussed solubility, stability, basic strength, reducing power, उसके अलावा बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ड्रैगोज रूल भी मैंने डिस्कस किया था. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का ग्रेटर है स्टाइबीन से, ये गलत स्टेटमेंट है और यही आपका आंसर भी होना चाहिए.
फर्स्ट ऑप्शन वाज एक्चुअली अ पार्टली करेक्ट स्टेटमेंट, बट अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है जो कंप्लीटली इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा व्हेन इट इज आस्क्ड व्हिच इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी पूरा करेक्ट नहीं है, पार्शियली करेक्ट है, ध्यान रखना उसको। अगर फोर्थ ऑप्शन मान लो करेक्ट दिया होता, देन यू वुड हैव सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर एज 1 बिकॉज इट वाज नॉट अ कंप्लीट करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा चारों ऑप्शन रीड करो एंड देन ओनली यू डिसाइड, क्योंकि हो सकता है पहला स्टेटमेंट जो आपको पार्शियली करेक्ट लग रहा है वो शायद आंसर हो या ना हो, दैट इज नॉट कंफर्म्ड। बिना तीनों ऑप्शन रीड करे ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, बहुत बड़ा मिस्टेक है विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग ऑल द ऑप्शंस। Coming to questions from exercise 2, which of the following is electron deficient compound? Sodium borohydride, diborane, aluminium chloride का dimer and lithium aluminium hydride. Electron deficient. Should be simple. Group 13 का बहुत important concept है ये. Borane Diborane. compound versus diborane. Boron is electron deficient because of 6 electrons in the valence shell, and that is why it forms a dimer which is called diborane. ठीक है, तो आंसर यही है। अब B2H6 एज अ होल इज नॉट डेफिशिएंट, बट इसका जो मोनोमर फॉर्म है वो ऑब्वियसली डेफिशिएंट होता है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग द आंसर विथ रिगार्ड्स टू दैट ओनली, बिकॉज बाकी अगर ऑप्शंस देखोगे तो इन सब में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इसका एक और रीजन है, व्हेन द डाइबोरेन इज फॉर्म्ड इट फॉर्म्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द ब्रिजेस और बिटवीन द बोरॉन एटम्स। व्हाट वाज दैट कॉल्ड? Banana bonds also called। ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड था, क्या बोलते थे इसको? 3C2E bonds। The bridge bonds are called 3C2E bonds। और बाकी 4 हाइड्रोजन को टर्मिनल बॉन्ड्स बोलते हैं, जो कि 2C2E नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें जो बोरॉन है उसमें 3 न्यूक्लियाई है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही शेयर्ड है, तो यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल खाली है, इसलिए B2H6 एज अ होल इज आल्सो electron deficient molecule। So the molecules which have 3C2E bonds are always electron deficient, always। ठीक है, लेकिन अगर AlCl3 के डाइमर को देखें तो isn't the same concept applicable here? इस केस में जो बीच वाला क्लोरीन है वो 3C2E बॉन्ड्स नहीं बनाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है और वो अपना लोन पेयर अल्यूमिनियम को देता है, इसीलिए AlCl3 के डाइमर में दिस क्लोरीन forms a normal bond which is of the type 2C2E bond, और यहाँ पर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए Al2Cl6 एज अ होल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। It's a beautiful concept from the P block group 13 boron aluminum family, और ये मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। It is something which we have discussed, कुछ नया नहीं है। जब भी बीच में हाइड्रोजन होगा याद रहे 3C2E बॉन्ड बनता है, और जब बीच में क्लोरीन हो या कोई भी हैलोजन हो तो वो नॉर्मल 2C2E बॉन्ड बनाएगा और वो डेफिशिएंट नहीं कहलाएगा। A concept to be understood, to be remembered always। Next, for the hydrozoic acid is having a formula N3H। इसका अनायन बहुत स्पेशल है, इसको बोलते हैं अजाइड आयन, और इसको भी हम
डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन. Azides, metal azides on decomposition or on thermal decomposition immediately release N2 gas, and that was used in airbags. Okay. क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे लीस्ट स्टेबल है. विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी द लीस्ट स्टेबल. अगर आपको याद रहेगा तो ऑर्गेनिक में इफ वी हैव अ मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो उनमें स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए देयर वाज सम स्टेप्स गिवन. स्टेप बाय स्टेप ही एनालिसिस करना है. सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल यू चेक? द वेरी फर्स्ट Charge. कंडीशन. हाँ, Charge. नहीं, that was the second condition. First condition, Octet. octet. Very good. You have to observe that each element का octet is complete. अगर कोई molecule है जिसका octet complete नहीं है, वो less stable होगा as compared to molecule which is having a complete octet. जैसे कार्बन का cation deficient है, उसका octet complete नहीं है, so that species will be less stable as compared to a molecule which has a complete octet. नाउ चेक करो यहाँ पर ऑक्टेट कहीं पे इनकम्प्लीट है क्या किसी मॉलिक्यूल या स्पीशीज के लिए. चेक ईच एटम का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए. Second one. सेकेंड वन. बिकॉज सेकेंड वन के सेकेंड एटम यानी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के साथ खाली 2 ही वैलेंसी है. अब नाइट्रोजन विद अ प्लस शुड बी टेट्रावेलेंट. टेट्रावेलेंट 4 बॉन्ड्स होने चाहिए तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना. तो यहाँ पर 2 ही बॉन्ड्स हैं, मतलब ये स्पीशीज सबसे कम स्टेबल है. आंसर है 2. बाकी केस में द ऑक्टेट इज कंप्लीट, मतलब दे आर स्टेबल. अच्छा, मान लो ऑक्टेट का रूल भी फेल हो जाता है, तो फिर चार्ज के ऊपर आने का. अब यहाँ देखोगे तो ओवरऑल द नेट चार्ज ऑन ऑल द स्पीशीज इज इक्वल टू 0. ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं. +1 -1 0, +1 +1 -2 0, -1 +1 0. तो ये भी काम नहीं आता. उसके बाद थर्ड था मोर द पाई बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी. वो भी काम नहीं करे तो फिर चार्ज किसके ऊपर है वो देखने का. सो पॉजिटिव चार्ज इज फेवरेबल ऑन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and a negative charge is favorable on a more electronegative atom. तो ये स्टेप्स थे जिसके ऊपर आप स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो, एंड दैट इज अ सिंपल सीक्वेंस टू बी फॉलोड टू सॉल्व द क्वेश्चंस अबाउट स्टेबिलिटी. नेक्स्ट, ये तो देखते ही याद आ जाना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग XOX बॉन्ड एंगल इन oxygen chloride, water and oxygen difluoride, rather dichlorine oxide, sorry, water and oxygen difluoride. ये ऑर्डर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. Yes, anyone? The answer is Cl2O, water and F2O. ये तो आपको याद रह जाना चाहिए, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यू शुड फील कॉन्फिडेंट इन द अप्रोच. Because when we have solved a particular thing and similar type of question pops up, your confidence for that question should be very high. And उसके लिए regular revision लगेगा. Anyways, OCl2 के केस में the chlorine atoms are quite bulky. Because of the bulkiness, the electronic repulsions are going to be more, and that is why this angle will be very high. And ये angle करीबन 110 डिग्री था. वैल्यू इसके साथ बताया मैंने. अब इसके हिसाब से वाटर और फ्लोरीन में हाइड्रोजन छोटा होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होना चाहिए. लेकिन OF2 में क्या होता है, फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ऑक्सीजन के एटम के करस्पॉन्डिंग it will attract the electron density towards itself, due to which central atom oxygen के ऊपर electron density कम हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा और ये एंगल वाटर से भी छोटा हो जाएगा। तो वाटर में हमें पता है स्टैंडर्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है और OF2 के केस में ये और भी कम होकर 103 डिग्री हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और मॉलिक्यूल को हमने कंपेयर किया था एंड दैट वाज क्लोरीन डाइऑक्साइड, where chlorine was bonded to two oxygen by double bonds having a lone pair and a radical. अब इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन और पाई बॉन्ड्स की वजह से द एंगल वाज क्वाइट हाई, बिकॉज पाई बॉन्ड जो है वो लेटरल ओवरलैप से बनता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होंगे वो बहुत ही ज्यादा होते हैं और इसका एंगल 118 डिग्री के आसपास हो जाता है। इसलिए ये 4 ऑक्साइड्स का ऑर्डर हमेशा याद रखना। इट्स क्लोरीन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय Cl2O देन वाटर एंड लास्ट में OF2, an order to be remembered bond angle. Next, which of the following statement is incorrect? ऑप्शंस देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ द स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है या कहाँ से ऐड होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी मैंने मॉड के टाइम पे बताया था, वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग N2+ फॉर्मेशन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। अब इसके लिए आपको MO का सीक्वेंस ड्रॉ करना या लिखना पड़ेगा। तो N2 के लिए वी हैव अ टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स and the sequence for this was sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए जो ऑर्डर था उसमें द पाई एंड पाई स्टार वर टुगेदर। 1 सेकंड, सो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के लिए द ऑर्डर वाज हैविंग द पाई एंड पाई स्टार टुगेदर, बट उनके अलावा नाइट्रोजन C2B2 स्पीशीज के लिए द पाई एंड पाई स्टार वर ऑल्टरनेट, ऑर्डर स्विच हो गया था। तो उसमें ऑर्डर याद रखने के लिए सिर्फ इतने याद रखो, पाई एंड पाई स्टार आर नॉट टुगेदर, मतलब इस केस में पाई 2px 2py साथ में, उसके बाद सिग्मा 2pz आता है, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दिस 2 ऑर्डर इज रिवर्स्ड, बाकी पूरा का पूरा सेम होता है। ये है आपका MO सीक्वेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीक्वेंस। अब भरना कैसे है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, so every orbital has a capacity of 2 electrons, so it's 2 4 6 8, then similar energy में एक एक करके जाएगा, यानी 9 10 11 12 तो पैर हो जाएगा, and then 13 and 14 मतलब यहाँ पर 2, तो ये हो गया आपका N2 का सीक्वेंस। ठीक है, अब N2 से N2+ जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट फ्रॉम सिग्मा 2pz which is a bonding molecular orbital, and N2 से N2- की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन द ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में है वहां से निकालना है और ऐड करने के लिए उसके बाजू वाला ऑर्बिटल को एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग N2+ formation one electron is removed from the BMO, yes the electron is removed from the BMO, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। आगे, ड्यूरिंग O2+ formation one electron is removed from the ABMO of O2। नाउ ऑक्सीजन के लिए तो स्टैंडर्ड चीज पता होना चाहिए दैट कहाँ थे हम, हाँ, ऑक्सीजन के लिए
you should know that there are 2 electrons in the anti-bonding molecular orbital. Audible है ना? Yes, sir. हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ABMO में, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा देन ऑल्सो इट विल बी फ्रॉम ABMO, एंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो भी ABMO में ही होगा, बिकॉज ऑक्सीजन के केस में दिस 2 pi star orbital have 1 electron each, and because of that electron loss या gain will happen in the ABMO only. तो अब स्टेटमेंट अगर देखोगे तो O2 प्लस फॉर्मेशन में 1 electron is removed from ABMO is true, and O2 माइनस में 1 electron is added to BMO is false. तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड हेंस द आंसर. समझा? Yes, sir. और Cn नेगेटिव फॉर्मेशन, नाउ Cn नेगेटिव मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो 6, 7 और 1 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इनका जो सीक्वेंस है दैट इज सेम एज N2, मतलब यही है. तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Cn. यस, बिकॉज Cn में एक्चुअली 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच विल हैव सिग्मा 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन. तो जब माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो इस सिग्मा 2pz में जाकर 14 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा. समझा? एवरीवन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. अब सुनो एक और कॉन्सेप्ट. N2 या कोई भी स्पीशीज में द लास्ट इलेक्ट्रॉन which is entered in the molecular orbital is called as the HOMO, that is highest occupied molecular orbital. लास्ट ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसको होमो बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हुआ है यानी उसके बाद वाला ऑर्बिटल को लूमो बोलते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, these are just the terms which you should know. Highest occupied molecular orbital and lowest unoccupied molecular orbital. ठीक है, तो किसी भी स्पीशीज में जो होमो और लूमो रहता है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द स्पीशीज. कैसे? जैसे अगर हम हैलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वी नो दैट ऑल ऑफ दीज वर कलर्ड स्पीशीज. F2 and Cl2 were almost yellowish. This is reddish brown and I2 is violet. ठीक है, तो जितना होमोलूमो गैप जो है वो छोटा होगा उतना हायर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब होगा. एनर्जी इज इनवर्स टू द वेवलेंथ, राइट? तो अगर आप I2 को देखोगे इट इज हैविंग द कलर ऑफ द लीस्ट वेवलेंथ बिकॉज इसका जो होमोलूमो गैप है वो काफी बड़ा है. द एनर्जी गैप इज हायर. ठीक है, तो ये एक फंडा है जो सिलेबस में नहीं है आपके, बट जस्ट अगर कोई कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड आ जाता है तो उसका एप्लीकेशन मैंने बता दिया है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो लूमो लेवल फॉर C2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 2pz. तो C2 के लिए जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगा ना, 12 इलेक्ट्रॉन का. दिस इज अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन में यही होगा, राइट एवरीवन? Yes, sir. तो इसका यहां पर C2 स्पीशीज के लिए दिस विल बिकम द होमो एंड दिस विल बिकम द लूमो. तो स्टेटमेंट नंबर 1, लूमो लेवल फॉर C2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 2pz. यस, ये लूमो है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है. In C2 molecules, both the bonds are pi bonds. Now, this is important and it's a correct statement. Why? Because अगर आप C2 molecule देखते हो तो इस केस में both the last pair of electrons are entering in the pi 2p orbitals, यानी pi वाले bonding molecular orbitals में जा रहे हैं. यानी जो C2 species है उसमें डबल बॉन्ड बनता है और दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है. Normally, a double bond is a combination of one sigma and one pi bond. But Mott के अकॉर्डिंग C2 में जो दो बॉन्ड्स बनते हैं both are pi bonds. इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर चेक करोगे तो इट्स गिवन बाय अ फॉर्मूला हाफ ऑफ NB माइनस NA. ये फॉर्मूला दिया था लास्ट टाइम. तो हाफ ऑफ NB मतलब 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन BMO में है,
4 एंटी बॉन्डिंग में है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हमें कंफर्म हुआ एमओटी से। तो कौन से टाइप के बॉन्ड्स हैं वो भी एमओटी कंफर्म करता है। समझा? Yes. And in C2-2 ion, there is 1 sigma and 2 pi bonds. Now, this is a famous ion. C triple bond C with -1 each. इसको बोलते हैं कार्बाइड। और इसी का एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बाइड, जिसका हाइड्रोलिसिस एसिटिलीन देता है। तो इस कार्बाइड में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डेफिनेटली 1 सिग्मा और 2 पाई के जैसा है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे, एंड 14 इलेक्ट्रॉन मतलब N2 के जैसा, एंड इफ इट इज N2 के जैसा मतलब इट इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस is the concept from the MOT। वंस अगेन बोल रहा हूं, पूरे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में एमओटी का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी साल एमओटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस गो थ्रू करो। एमओटी इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक फॉर द नीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, among the following, which one will have the largest O bond length? Now, bond length का question is to be solved on the basis of Bond order. बॉन्ड ऑर्डर। तो लार्जेस्ट लेंथ मतलब स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब ऑप्शंस में देखो, ये सारे ऑक्सीजन के स्पीशीज है। व्हाट इज फर्स्ट वन? पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। सो दिस इज O2 विद -1, एंड सुपर ऑक्साइड में 17 इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो टेबल दिया था उसके हिसाब से व्हाट इज 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर? पूरा नंबर लाइन में भी बताया था मैंने। 14 is the reference bond order of 3, then 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। तो ये 1.5 वाला बॉन्ड ऑर्डर है। ऑक्सीजन तो अपना न्यूट्रल है, 16 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2। O2 प्लस में देयर आर 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स, टेबल देखो, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। एंड peroxide is O2 -2 with the electrons 18 and bond order equal to 1। तो आपका आंसर स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से ऑप्शन 4 है। खत्म। ठीक है। एंड नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर इन विच O बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग इज। नाउ ओजोन में व्हाट वाज द O बॉन्ड ऑर्डर? ओजोन Ozone was having a resonating structure where the pi bond was distributed in both the positions equally. So it was having a bond order 1.5. Group 16 में ओजोन का स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ कर चुके हैं। peroxide is O2 -2 with a bond order 1, ऊपर ही देख लिया। ऑक्सीजन में 2 है। तो अगेन बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आया है, तो सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। हेंस आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, the dipole moment of chlorobenzene is 1.5. So dipole moment of tetrachlorobenzene will be, अगर आपको वेक्टर्स समझता है, कभी पढ़ा होगा मैथ्स में, तो ये आंसर बहुत सिंपल है। 1.5. 1.5 ही रहेगा, क्योंकि दिस टू वेक्टर्स आर कैंसलिंग ईच अदर एंड दिस टू आर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और 120 डिग्री पे जो डाइपोल मोमेंट की 1.5 डिवाइस है वो सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट, stability of the species Li2, Li2 negative and Li2 plus increases in the order of। So ऐसे टाइप के स्पीशीज के लिए स्टेबिलिटी इज कंपेयर्ड विथ व्हाट पैरामीटर? बॉन्ड ऑर्डर।
Li2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2 और सिग्मा 2s में 2. With 6 electrons, the bond order is calculated as half of Nb minus Na. Nb मतलब बॉन्डिंग में 4, Na मतलब एंटी बॉन्डिंग में 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1. अब Li2 प्लस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द BMO and because of that we'll get sigma 1s2, sigma star 1s2 and sigma 2s में 1. अब इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं तो इट्स हाफ ऑफ 3 minus 2 which is equal to 0.5. एंड Li2 निगेटिव में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा जो कि ABMO है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से we will have sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2 and sigma star 2s1. और इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर कैलकुलेट करते हैं तो हाफ ऑफ 5 minus, sorry not 5, it's 4 minus 3, 4 minus 3 which is again 0.5. स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो अनडाउटेडली Li2 का होगा. अब बाकी दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो थियोरेटिकली दे शुड बी इक्वली स्टेबल, बट मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि ये दोनों इक्वली स्टेबल नहीं होगा. विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? Li plus. Li2 plus, because the electron here is present in the BMO and Li2 minus में the electron is present in ABMO. ABMO में electron होना less favored है, less preferable है. इसलिए despite of the same bond order, Li2 plus is going to be more stable than Li2 minus. Hence the answer is option 2. Clear? That's it. We have completed the chemical bonding chapter. I have taken all the important MCQs from exercise 1, exercise 2 और miscellaneous questions को भी आप go through कर सकते हो. Now overall the entire topic I have discussed with most of the things already done in the previous chapter. They were a kind of revision for you. ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो कहीं पे अटकते हो और पहले के चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट है, go back to the chapter, revise it and come back. This will definitely help you to revise the concepts, smaller concepts, and overall जैसे जैसे बॉन्डिंग भी करोगे वैसे थोड़े थोड़े ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते जाएंगे आपके. ठीक है.